students, today we are going to see the relation between B bar, H bar and M bar. तो B bar क्या था? मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. देन H bar इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड M इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अब इन तीनों के बीच वाला रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं. नाउ वी ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया, हमने देख लिया था द सरफेस जो करंट है, सरफेस करंट, उसको हमने IS से डिनोट किया था, ऑफ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस. हमने ऑलरेडी देख लिया जो IS है इज द सम ऑफ फ्री करंट एंड बाउंड करंट. ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्री करंट, और फ्री करंट को हमने डिनोट किया था I फ्री से, एंड बाउंड करंट I बाउंड. तो IS इज इक्वल टू I फ्री प्लस I बाउंड. वी ऑल्सो नो दैट J इज J is current density. J is current density. J free is free current density, and J bound is bound current density. So now we are going to use Ampere's circuital law. Now from Ampere's circuital law, del cross B bar is equal to mu 0 into J total, which is equal to mu 0 J free plus J bound. We also know that del cross H is equal to J free. This is equation number 1 and this is equation number 2 and 3. Now we will open this. Del cross B bar is equal to mu 0 J free plus mu 0 J bound, which is del cross B is equal to mu 0 del cross H plus mu 0 del cross M. Now divide throughout by mu 0. Cross B upon mu 0 is equal to del cross H plus del cross M. Now we will take this 2 over here. So del cross B bar upon mu 0 minus del cross M bar is equal to del cross H bar. We will take del common. Del cross B bar upon mu 0 minus M bar is equal to del cross H bar. So this is nothing but, from this equation, B bar upon mu 0 minus M bar is equal to H bar. इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करते हैं तो B bar माइनस mu 0 M bar is equal to mu 0 H bar. B bar is equal to mu 0 H bar plus mu 0 M bar is equal to mu 0 times M plus
H bar. So this is very important, M bar and H bar. This is the relation between B bar, M bar, H bar. और relation क्या है? B bar is equal to mu 0 M bar plus H bar. Now इस इक्वेशन स्टार से हमें क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर मैंने इसका डाइवर्जेंस लिया बोथ साइड का, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी अगर जीरो होता है तो डाइवर्जेंस ऑफ एच कभी भी जीरो नहीं होगा. वो किसके बराबर रहेगा? डाइवर्जेंस ऑफ माइनस एम के बराबर रहेगा. सो फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल्दो divergence of b bar is equal to 0 everywhere, but अगर मैंने यहाँ पे डाइवर्जेंस b इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दिस एंटायर थिंग, तो डाइवर्जेंस ऑफ m बार प्लस डाइवर्जेंस ऑफ h बार आ जाएगा. mu 0 इज कांस्टेंट, तो ये अगर 0 के बराबर रहा तो h बार माइनस डाइवर्जेंस m बार के बराबर रहेगा. बट divergence of h bar is not equal to 0 and gives divergence of h bar is equal to minus divergence of m bar. ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन. सेकेंड, outside a magnetized substance m bar is equal to 0. आउटसाइड ए मैग्नेटाइज सब्सटेंस m बार क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, तो 0 रहा. देयरफॉर h बार इज इक्वल टू b बार अपॉन म्यू 0. ये फ्रॉम दिस इक्वेशन b 0 अपॉन म्यू 0 माइनस m बार इज इक्वल टू h बार. ये अगर 0 हो गया तो h बार इज इक्वल टू b बार अपॉन म्यू 0 बार. म्यू 0 इज कांस्टेंट. Thus, outside the magnetized substance, the direction of vector h bar is the same as that of b bar. Third conclusion, the intensity of magnetization in a magnetized substance is directly proportional to the magnetizing field H. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द मैग्नेटाइज सब्सटेंस कैसा रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के बराबर रहता है, यानी m bar is directly proportional to h bar, or m bar is equal to xi m h bar, where xi m is the magnetic susceptibility of the magnetized substance, and it is dimensionless quantity. Now fourth point, the ratio of magnetic field b bar and the magnetizing field h bar is called the
absolute magnetic permeability of the medium. ठीक है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी बार एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच बार, इसका जब रेशियो लेंगे उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है. देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू किसका रेशियो है, बी बार अपॉन एच बार, यानी बी बार इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच बार. द यूनिट ऑफ म्यू इज न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. जैसे वो भी देख लेते हैं. म्यू इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू बी बार अपॉन एच बार है. यूनिट ऑफ बी है टेस्ला और एच है एम्पियर पर मीटर, ठीक है. और टेस्ला किसके बराबर है, टी एस एल. टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे विच विल इक्वल टू, तो म्यू बार इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर एंड डिवाइडेड बाय एम्पियर पर मीटर. मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो वी आर गेटिंग न्यूटन, एन इज न्यूटन, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. Now fourth conclusion, we know that m bar is equal to xi m h bar, and also we know that b bar is equal to mu times h bar, but b bar is equal to mu 0 h plus m. ऑलरेडी हमने ये डिराइव किया है. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यूज. ये m एंड b का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो b इज इक्वल टू म्यू टाइम्स h बार इज इक्वल टू म्यू 0 h प्लस xi m h बार, तो विच इज इक्वल टू म्यू 0 h बार हम निकाल लेते हैं 1 प्लस xi m h बार, म्यू टाइम्स h बार के बराबर. देयरफॉर h कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस xi m, म्यू अपॉन म्यू 0 इज इक्वल टू, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू आर से एक नया कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 प्लस xi m के बराबर रहेगा, वेयर द constant mu r is called relative permeability. अभी रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में, रिलेटिव परमेबिलिटी, it is the ratio of the permeability mu of the material to that of vacuum mu 0. Relative permeability is mere a number
बीइंग वो एक्चुअली क्या है, इट इज बीइंग द रेशियो, ये क्या है, रेशियो है किसका, म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो का। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ाई एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। तो हमारा इक्वेशन एम बार इज इक्वल टू ज़ाई एम टाइम्स एच बार था। ज़ाई की जगह पे हम इसे डबल स्टार को हम यहाँ पे ये करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये मिल जाएगा एम बार इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 एच बार, या फिर बी बार का रिलेशन भी हमें पता है, म्यू टाइम्स एच बार था, तो ये आ जाएगा म्यू ज़ीरो, क्योंकि म्यू आ रहा है इस रिलेशन से, म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू एच बार, क्योंकि फ्रॉम दिस इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, हमें मिला इक्वेशन 3 स्टार। इसे और मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, तो ये म्यू ज़ीरो लिख लिया, म्यू आर की जगह पे म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ाई एम इंटू एच बार। ये किसी भी फॉर्म में वो एग्ज़ाम में तुम्हें पूछ सकते हैं। थैंक यू।